کوہ سلیمان کی رود کوہیوں میں سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور تونسا کو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے افسران کو بروقت رپورٹنگ یقینی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز ریسکیو آپریشن بارے کنٹرول روم کو آگاہ کریں گے۔ پی ڈی ایم اے کے متعلقہ اضلاع میں ریسکیو ٹیموں کو الرٹ رکھنے کی ہدایت ہے۔ ہنگامی صورتحال میں بروقت ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب میں بارشوں کے باعث گندم کی فصل کا شدید نقصان ہوا۔ بارشوں نے کسان کی کئی ماہ کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ملتان سمیت دیگر اضلاع میں کاشتکار پریشان ہیں۔ بارشوں نے گندم کی تیار فصل تباہ کر دی۔ بارشوں کے باعث گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ ملتان میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری، گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا، کسانوں کے چہرے مرجھا گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ رواں سال بارشوں اور آندھیوں نے گندم کی فصل کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر اولیا میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان، کاشتکاروں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ گندم کے لہلاتے سٹے کھیتوں میں گر گئے۔ کاشتکار رانا ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ تیار فصل کی کٹائی کرنی تھی، لیکن اب صورتحال کافی بری ہے۔ رواں سال بارشوں اور آندھیوں نے گندم کی فصل کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بالکل پک کے تیار ہو گئی ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ گندم لمبی ہو گئی ہے۔ آج ہم نے گندم کی کٹائی کا عمل شروع کرنا تھا اور رات کو اور صبح بارش بھی ہوئی ہے، ہلکی ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارا کاشتکار بہت پریشان ہے کیونکہ گندم جو ہے ہمارے ملک کی غذائی قلت کا سامنا آ رہا ہے۔ کھیتوں میں گرے سٹوں کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے آٹے کی تقسیم کے حوالے سے۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں آٹے کی تقسیم مزید آسان بنا دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم کہتے ہیں کہ شہریوں اور روزہ داروں کو موسمی تلخیوں کے بچانے کے لیے صبح 6 بجے آٹا فراہمی شروع کر دی جاتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں آٹے کی تقسیم کو مزید آسان بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم کا کہنا تھا کہ حقداروں تک ان کا حق پہنچانے کے لیے آٹے کی تقسیم کو مزید آسان کر دیا گیا ہے۔ جو شہری بیماری کی صورت میں آٹا سینٹر نہیں آ سکتے، میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانے پر ان کے خونی رشتہ داروں کو بھی آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل کا سرٹیفکیٹ ساتھ لائیں گے کہ جی وہ چل نہیں سکتے، بیمار ہیں، ہم ان کے بلڈ ریلیشن کو آٹا فراہم کر دیں گے۔ بس ثبوت دینا ان کا کام ہے، آٹا فراہم کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم کسی کو یا خالی آ جانے نہیں دیتے، لیکن ثبوت لے کے آئیں بلڈ ریلیشن کا تو ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ 80 سال کے زیادہ بزرگ جو ہے ان کو بالکل فری کیا ہوا کہ آئیں اور لے کے چلے جائیں۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا، کوئی بھائی آیا، ان دے دیتے ہیں ان کو۔ فوکل پرسن واحد شاہ کے مطابق 6000 میں سے 5800 بیگز آٹا صبح سویرے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ خواتین اور مردوں کے الگ الگ کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں تاکہ سینٹر آنے والے کسی بھی شہری کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تقریباً آج 5800 کا کوٹا ہمارا ہے اور الحمدللہ ہمارا 250-300 بقایا بچ گئے، بقایا تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیے گئے۔ فیمیل سیٹ اپ ہمارا علیحدہ بنا ہوا ہے، میل سیٹ اپ ہمارا علیحدہ بنا ہوا ہے۔ 8 سکینر ہمارے میل سیٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں اور 6 سکینر ہمارے فیمیل سیٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ کوئی ہمارے پاس پرابلم نہیں ہے، بہترین کام چل رہا ہے سر۔ میاں والی کے ہر سینٹر پر گزشتہ ایک ہفتے سے 6000 بیگ آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رمضان ریلیف پیکیج کے تحت آٹا بآسانی دستیاب ہے۔ بہاولپور کے شہری خوش سینٹرز ملازمین کہتے ہیں خاندان نمبر 1 ہونے پر مرد و خواتین کے ساتھ سٹاف کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ شادی شدہ مرد و خواتین گھرانہ نمبر الگ کروائیں گے تو انہیں علیحدہ سے مفت آٹا ملے گا۔ محمود ظہیر کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ ریلیف پیکج کے تحت بہاولپور کے شہریوں کو آٹا بآسانی دستیاب ہے۔ آٹا سینٹر سٹاف کا کہنا تھا کہ خاندان نمبر 1 ہی ہونے کے باعث اکثر شادی شدہ مرد اور خواتین کو آٹا نہیں مل رہا۔ موسٹلی جو فیملیز آ رہی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہے نا، فیملیز جو سیپریٹ ہیں، بیٹے گھرانے علیحدہ ہیں، لیکن ان کا خاندان نمبر 1 ہی آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں صرف ایک جنے کو ملتا ہے تھیلا۔ آٹا سینٹر ملازمین کا کہنا تھا کہ شادی شدہ مرد و خواتین نادرہ ریکارڈ میں اپنے والدین سے گھرانہ نمبر الگ کروائیں تو انہیں علیحدہ سے مفت آٹا ملے گا۔ گھرانہ نمبر 1 جیسا ہونے کے باعث ایک شخص آٹا لے جاتا ہے، دیگر افراد آ کر لڑتے ہیں۔ خاندان نمبر ہے وہ سیپریٹ کرائے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایک ہی خاندان میں شامل ہیں اور شادیاں سیپریٹ ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جا کے نادرہ میں جا کے یا کسی ایسے ادارے میں جا کے وہ اپنے خاندان سیپریٹ کریں تاکہ ان کو یہ فیسلٹی
मैसर हो सके। सेंटर मुलाजमीन ने बताया कि ताहयात शनाख्ती कार्ड रखने वालों को फ्री आटा नहीं मिल रहा, उन्हें इस पैकेज में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और अब आपको बताएंगे, बढ़ती महंगाई की वजह से हर तबका फिक्र को मुश्किलात का सामना है। शहर मुल्तान में ऑटो मार्केट भी सुनसान हो गई है। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी सवारी भी अवाम की दस्तरस से बाहर है। शोरूम मालिकान सुनसान, मार्केट में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से ऑटो मार्केट सुनसान हो गई। शोरूम मालिकान कहते हैं कि आए रोज बढ़ती कीमतों से कारोबार ठप होकर रह गए हैं और नई गाड़ियों की सेल ना होने के बराबर है। सिर्फ पुरानी गाड़ियों पर शहरियों का रुझान बढ़ा है, मगर इनकी कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर उस तरह का फ्लो नहीं है जैसे आज से 2-3 साल पहले था। फॉर एग्जांपल के हर कोई पहले सोचता था कि गाड़ी में अब हम अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो हम नई गाड़ी ले लेते हैं, 2 लाख रुपए डाल के आ जाती थी। अब समझ लें कि अब किसी के पास 21 मॉडल सिविक है, उसे नई सिविक लेने के लिए जो आजकल लेटेस्ट शेप चल रही है उसे तकरीबन 30-40 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। अब इतने फर्क पे आके लोग परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि गाड़ियों के रेट्स में तवाज़ुन नहीं, जिसके बायस शोरूम पर लगने वाले हर चक्कर में नई कीमत सुनने को मिलती है। कुछ मजीद पैसे इकट्ठे कर गाड़ी खरीदने पहुंचते हैं तो रेट में मजीद इजाफा हो चुका होता है। बढ़ती महंगाई में अवामी सवारी भी पहुंच से बाहर हो चुकी है। बात है, मेरा नहीं ख्याल कि मिडिल क्लास अब गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप गाड़ी की बात करें तो अगर वो गाड़ी ले भी ले तो जो उसकी मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स हैं और फ्यूल की जो प्राइसेस है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये इनको चाहिए कि इनकी प्राइसेस डिक्रीज करें जो आम के इस्तेमाल में आ सके गाड़ी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गाड़ियों की कीमतें कम हों और शहरियों के लिए अवामी सवारी का हसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। महंगाई के बढ़ते वार पढ़ना लिखना भी हुआ दुश्वार। स्टेशनरी की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। पेंसिल, शार्पनर, रेजर, रोशनाई समेत दीगर सामान भी महंगा हो गया। स्टेशनरी महंगी होने से जहां खरीदार परेशान है, वहीं दुकानदारों का कारोबार भी खासा मुतासिर हुआ है। स्टेशनरी की कीमतों में 6 माह के दौरान कितना इजाफा हुआ, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। महंगाई का जिन बेकाबू होने से बच्चों के लिए लिखना पढ़ना भी खासा दुश्वार हो गया। स्टेशनरी की बुनियादी अशिया, पेंसिल, रेजर, शार्पनर समेत दीगर सामान मजीद महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि सब अशिया की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। वालिदैन अपने बच्चों को अब सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद कर देते हैं। रेट काफी हाई हो गए हैं, यानी कि डबल रेट हो गए हैं पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह के। तो जो चीज़ पहले 120 में थी वो अब 140, 150, 60 में पहुंच गई है। यानी कि जिन वालिदैन के पास अगर गुंजाइश नहीं बनती तो वो 12 से अब 6 पे आ गए हैं। ये सिस्टम हो गया। और पॉइंटर वगैरह का भी यही सिस्टम है। और 130 रुपये वाली जो डब्बी थी ना वो 160, 70, 80 में पहुंच गई है। स्टेशनरी का सामान महंगा होने से दुकानदारों के साथ तुलबा भी परेशान नजर आते हैं। तुलबा का कहना था कि हम पेंसिल, रेजर खरीदने आए हुए हैं, मगर ये सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। यहाँ हम पेंसिल, रेजर लेने आए हुए हैं, बहुत महंगी हो गई है और हम स्कूल जाते हैं, हम ले नहीं सकते, हम गरीब हैं। महंगाई के इस दौर में शहरियों ने मुतालबा किया है कि तालीम के फरोग के लिए स्टेशनरी की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब हम खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल सिटी अहदेदारान की कसीर तादाद में शिरकत हुई। नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और 1973 का आइन भी दिया। सईद ज़ोएब बुखारी की रिपोर्ट में देखेंगे। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी पर मुल्तान डिवीजन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिवीजनल व सिटी अहदेदारान कसीर तादाद में शरीक हुए। हम कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अप्रैल को हमेशा लाड़काना चाहते हैं, लेकिन इस दफ़ा पार्टी का हुक्म था कि हर ज़िले में अपनी अपनी जगह पे मनाया जाए। तो आज ये मुझे खुशी है कि हमारे कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे और उनकी बेटी मोहतरमा भुट्टो साहब की को भी सलाम पेश करते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और 1973 का आइन दिया। खिदमात को खराज तस्लीम भी पेश करते हैं क्योंकि आज मुल्क
सियासी, मुआशी, माशरती और एटमी और दिफाई लिहाज से हो या किसी और लिहाज से हो, जमहूरी लिहाज से हो, ऐनी लिहाज से हो, कानून के लिहाज से हो, आज जिन बुनियादों पर खड़ा है, ये बुनियादें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही बनाई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एहतसास शख्सियत थे। उन्होंने पाकिस्तान को जिस पैराए में ला के खड़ा किया है, उसमें एटमी कुव्वत, जमहूरियत और माशी और माशरती तौर पर जिस कदर उन्होंने इस्तेहकाम पैदा किया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो, एटम बम हो, पाकिस्तान में अक़लियत करार देना मिर्ज़इयों को, ये उनके कारनामे थे। आज की कौम जो मौजूद बैठी है, जो हालात इस टाइम इस मुल्क के हैं, अगर भुट्टो होते तो मैं या हमारे आज के जो बूढ़े या नौजवान हैं वो यहाँ ना होते। आज सो कॉल्ड हमारे वकला जिनको पीपल्स पार्टी ने बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ दी, वो उनके साथ जाके तो खड़े हो गए हैं नाम निहाद लोगों के साथ। 44वीं बरसी है, उसको अकीदत और एहतराम से मनाया जाए और उनके जो कारनामे हैं उनकी रोशनी में हम सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में लेके आगे चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान हथेली पे रख के पाकिस्तान के अवाम के साथ चले और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। तकरीब में सिटी सदर मलिक नसीम लाबिर, नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, जनरल सेक्रेटरी एम सलीम राजा, एडी बलोच समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ जुहेब बुखारी, मुल्तान। निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी का मुकामी होटल में इफ्तार डिनर। मुल्तान डिवीजन के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स की शिरकत। चेयरमैन निस्वा इंटरनेशनल मलिक शफाकत अली बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा इफ्तार डिनर का मकसद डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुलाकात करना है। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखेंगे। निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स कंपनी की जानिब से मुल्तान के मकामी होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। इफ्तार डिनर में मुल्तान डिवीजन के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। चेयरमैन निस्वा इंटरनेशनल कंपनी मलिक शफाकत अली का कहना था कि इफ्तार डिनर का मकसद डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात करना था। मधु करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इनसे गेट टू गेट गैदरिंग होना रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज माशाल्लाह एक छोटी सी काल में जब वो इतनी शार्ट टाइम में पहुँचे हैं, हमें बहुत खुशी है। ये डिस्ट्रीब्यूटरों का प्यार, ये चाहत, ये मोहब्बत दे के हम उनको सलाम पेश करते हैं और ये ब्रांड के साथ उनकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी ब्रांड के साथ इसी तरह मोहब्बत जारी सारी रहे और कंपनी दिन दुगनी राजों की तरक्की करे। एक शॉर्ट से टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह के एक इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च करना ये कोई आम छोटी बात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कस्टमर का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस लिया है मार्केट से। उसके साथ साथ आज हमने अपने 2 से 3 प्रोडक्ट जो हैं वो नए मुतारिफ करवाए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि 1.5 साल से निस्वा कंपनी के साथ हैं। निस्वा कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स अच्छी और मयारी हैं। कंज्यूमर भी प्रोडक्ट्स के हवाले से खुश हैं। तमाम चीज़ों की क्वालिटी एक से एक बढ़कर है और इस मुकद्दस माह के अंदर इन्होंने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने बिजनेस पार्टनर के लिए यह तमाम किया है। हम कंपनी की मैनेजमेंट का जनाब मलिक शफाकत साहब का, नेशनल सेल्स मैनेजर शाहिद रजा साहब का, आसिम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन निस्वा कंपनी मलिक शफाकत अली ने डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहरी मुल्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने माह रमज़ान के 13वें सहरी करने के लिए सहरी पॉइंट्स का रुख कर लिया। दोस्तों के हमरा आए शहरी मौसम से काफ़ी लुत्फानंदोज़ होते दिखाई दिए। और बरकतों के महीने जी बिल्कुल, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों के महीने में रात गए बाज़ारों में शहरियों का काफ़ी रश पड़ जाता है शहरी पॉइंट्स पर। अगर मौसम की बात करें तो सरजमीन औलिया मुल्तान का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार हो गया। आज भी काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई थी, कहीं हल्की कहीं तेज़। उस हवाले से भी आज कुछ शहरी बाहर निकले मौसम को एंजॉय करने के लिए। इनसे जानते हैं मौसम काफ़ी खुशगवार है मुल्तान का, तो इस हवाले से आप दोस्तों के हमरा सहरी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान का मौसम जो है माशाल्लाह से पूरे रमज़ान में बड़ा अच्छा गुजरा है। सहरी करने का मज़ा आ रहा है और ऐसा रमज़ान पहले कभी नहीं हमने देखा जिसमें माशाल्लाह बरकतें, रहमतें और बारिश का भी जो है ना माशाल्लाह से बड़ा प्यारा हमें तोहफा मिला हुआ। अल्लाह ताला की करम नवाजी है हमारे ऊपर। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि काफ़ी खुशगवार मौसम है, रब ताला की ज़ात की तरफ से तोहफा मिला हुआ। आप बताइएगा कि शहरी में सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है, कौन सी खाने आते हैं दोस्तों के हमरा? यहाँ पे जो है ना निहारी होती है और छोटे पाए होते हैं। ये हमारे दोस्त है, मैं खुद कोयटा का हूँ। पहली दफ़ा जो है ना मुल्तान में मैंने ऐसा मौसम देखा है जो तकरीबन मेरे 12 रोज़े यहाँ पे पूरे हो गए।
मुसलसल बारिश होती रहती है, मतलब बहुत खूबसूरत मौसम है और यहाँ पे हम इंजॉय करने आता है इस होटल पे और बहुत अच्छा जायका है इसका, पराठे हो, चने हो, जो कुछ भी हो बड़े मज़ेदार हो। जी बिल्कुल, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, आप भी पेशावर कोयटा से हैं? कोयटा से है। इधर मुल्तान का पहली बार देखा है, इतना अच्छा मौसम है, ठंड है, बारिश हुआ है, बड़ा वीआईपी मौसम बना हुआ है ना, जैसे मरी का मौसम होता है। तो ये दोस्त है हमारा सारा इधर बैठा हुआ था, इधर आ गया। इधर होटल का खाना बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छा है, पराठा है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि खुशगवार मौसम के साथ साथ दोस्तों की महफिल में बाहर आए हैं, सैरी कर रहे हैं और मौसम से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी और नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।